very good morning to all of you. So in the last class we have completed a topic that is effect of change in demand on equilibrium price and the quantity, as well as we have also completed a effect of change in supply on equilibrium price and the quantity. Okay, so in the last class we have already discussed all these topics. So in today's class we are going to start a next topic, that is what are the sources or the factors of demand shift or the factors affecting the demand curve. Okay, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से जिनके लिए डिमांड कर्व क्या होता है वो शिफ्ट होता है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ओके, वो दोनों ही हैं कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, एज वेल एज फैक्टर्स जो डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस इट. दैट इज इन दी when we talk about that the movement along the same supply curve, so in that case there is no shift of the demand curve either rightward or the leftward. Only the changes occurs that the curve is move from the lower point to upper point or the upper point to lower point. But when we talk about the that is there is shift in the demand curve, so in that case it is only because of the increase in demand or the decrease in demand. We have studied here the relation between the factors which affecting the demand as well as the quantity demanded. Okay, so the increase in demand is only because of when the demand is increased, the curve is shifted to the rightward, and when the demand is decreased, the curve is shifted to the leftward. Okay, so first one is in the case of increase in demand. So first condition is rise in the price of the substitute goods. Okay, if the price of the substitute goods, okay, when we talk about the tea or coffee, when the substitute goods the price of the substitute goods increases, so that the curve is shifted to the rightward. When the price fall in price of the complementary goods, okay, when we talk about the car and petrol, so if the complementary good like price of the petrol, it will decreases, so that the curve is shifted to the rightward. Next one is increase in the income for the normal good. अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, कि फॉर द नॉर्मल गुड, जो गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं उनके लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल की इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ करती है. ठीक है, इंक्रीज़ करने में इनकम तो कंज्यूमर क्या करेगा, अच्छे कमोडिटी को प्रेफर करेगा, सो दैट ही विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड और द डिमांड विल इंक्रीजेज. एंड नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज़ इन इनकम फॉर द इंफीरियर गुड. इफ़ जो डिमांड है कंज्यूमर की, इनकम क्या है वो डिक्रीज़ कर रही है फॉर द इंफीरियर गुड. इंफीरियर गुड अगर वो परचेज़ करता है, उसकी अगर डिमांड डिक्रीज़ कर रही है, इन दैट केस the curve will shift to the rightward. Favorable change in the taste and the preference. If the changes in the different taste and preference of the product, so when it is in the favorable, मतलब वो अगर उसके फेवर में है तो क्या होगा, the curve will shift it to the rightward. Next one is increase in the market size or the population. Okay, when the market size or the number of population or the number of people increases, so that demand of the commodity is also increases, the curve will shift to the rightward. And when there is equal distribution of income, okay, जो income distribute होती है different the other member of the society like low income group, middle income group और medium income group और the high income group, तो अगर इनकी जो income distribution अगर equal होगा तो क्या होगा कि हमारी डिमांड जो है हर एक सेक्टर के लोग, प्राइमरी के हों, सेकेंडरी के हों, और दे आर फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर, द डिमांड फॉर दी ऑल द प्रोडक्ट और फ्रॉम ऑल द सेक्टर इट विल इंक्रीजेस if the income is equally distributed. Okay, so in this case the price, we will take the price on the y axis and the quantity demanded on the x axis. So the price will be the same, because here we are studying the relation between the
factors affecting the demand as well as the quantity demanded, and there is no change in the price of the commodity. So the price will be the constant and it is parallel to the x-axis. So DD curve is here, and when the demand increases, so it will shift to the rightward from DD to D1 D1. Okay, so it is all the reason when the increase in demand, the rightward shift of the demand curve. नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज़ इन डिमांड. ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जब डिमांड किसी भी इंडिविजुअल की डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जो भी कर्व है, डिमांड कर्व है, वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो फॉल इन प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स. इफ़ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स लाइक टी और द कॉफ़ी, सब्सटीट्यूट गुड्स अगर हम टी कंज्यूम कर रहे हैं और हमारे लिए कॉफ़ी सब्सटीट्यूट गुड्स, तो अगर उसकी प्राइस फॉल करती है तो हमारी प्राइस फॉल होने से जो डिमांड है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, एज वेल एज हम क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अगर कार और पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल हियर इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी सो दैट द डिमांड फॉर द car is also decreases, so that the curve will shift to the leftward. Decrease in the income for the normal good. If the income of the any consumer, any people decreases, so the demand for the normal good it also decreases, so that the curve will shift to the leftward. Next one is increase in the income for the inferior goods. Okay, अभी क्या है कि inferior goods की इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है फॉर दी इन्फीरियर गुड. ठीक है, तो लोग डिमांड कम करेंगे ना. अगर इनकम हमारी इंक्रीज़ हो गई और इन्फीरियर गुड्स का परचेज हम तब करेंगे, तब तो हम नहीं करेंगे ना. तो क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अनफेवरेबल चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस. जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन और डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है तो वे क्या होगा, डिमांड हमारी कम हो जाएगी. जैसे अभी रेनी सीज़न में आप क्या वुलन क्लोथ का डिमांड करोगे, नहीं करोगे ना. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वुलन क्लोथ की डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, सो दैट इट विल शिफ्टेड टू दी लेफ्टवर्ड. डिक्रीज़ इन द मार्केट साइज़ और द पॉपुलेशन. अगर मार्केट साइज़ और जो भी अगर मार्केट है उसकी साइज़ छोटी हो गई, मतलब वो स्मॉल हो गया, एज वेल एज जो पॉपुलेशन है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, मेंबर्स हैं, वो क्या हो गया, पॉपुलेशन कम हो गई, तो डिमांड भी लोगों की कम हो जाएगी, सो दैट द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. नेक्स्ट वन इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का इन द डिफरेंट members of this society, in the different income group of this society, low income, medium income group और the large income group. So अगर इनका क्या है कि इनमें equally distribution income का नहीं होता है और higher income group को income ज़्यादा मिलती है, जो low income group है उनको बहुत कम income मिल रही है, तो क्या होगा, तो डिमांड किसकी होगी सबसे ज़्यादा, जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है. तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड बस हायर इनकम ग्रुप की बढ़ेगी, लो इनकम ग्रुप की नहीं बढ़ेगी. तो इसलिए जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो सी इन द डायग्राम दैट वी विल टेक प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस. हियर दिस इज प्राइस. सो इन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड वी स्टडीड द रिलेशन बिटवीन द factors affecting the demand and the quantity supplied, and here there is no change in the price of the commodity, so the price curve is constant and it is parallel to the x-axis. There is no change in the price of the commodity. Okay, so here it is the demand curve, and when the demand is decreased, so it will shift to the leftward as the D2 D2. Okay, so these all are the reason why the demand curve is shifting the rightward or the leftward. इन्हीं सारी reasons की वजह से क्या होता है, demand curve हमारा rightward और the leftward shift होता है. Okay, now the next condition is for the sources and factors of supply shift or the factors affecting the supply curve. So what are the different sources or the factors जिनकी वजह से supply curve shift होता है. अभी तक हमने demand का जैसे पढ़ा ना, वैसे ही हम सप्लाई का भी पढ़ेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई कर्व को अफेक्ट करते हैं. सो इन दिस फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन सप्लाई.
So when the supply is increases, so it will shift to the leftward, and when the supply is increases it will shift to the rightward, and when the supply is decreases it will shift to the leftward. डिक्रीज इन सप्लाई के केस में कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज इन सप्लाई के केस में कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है. सो इंक्रीज इन सप्लाई कब, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड जब शिफ्ट होगा तो उसकी क्या कंडीशन है, व्हेन देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. जो भी टेक्नोलॉजी हम पहले से लगा रहे थे, जो भी यूज़ कर रहे थे फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, अब वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हो गया. सो अगर जैसे ही इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा. प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से सप्लाई भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ फॉल इन प्राइस ऑफ द इनपुट्स. जो भी प्राइस है इनपुट्स के, जो भी डिफरेंट हम इनपुट्स को यूज़ करके आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उनकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो हम उनकी डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, वो सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी. तो जैसे ही प्राइस फॉल करेगा तो सप्लायर विल प्रोड्यूस दी मोर एंड मोर कमोडिटी. सप्लायर ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अब उसको इनपुट्स में पैसा बहुत कम अमाउंट में पे करना पड़ रहा है. इन दैट केस द फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट सिंपली मीन इट विल इंक्रीज द सप्लाई and the curve will shift to the rightward. Next one is fall in excise tax rate. Okay, if the tax rate decrease, simple, अगर टैक्स रेट जो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे सप्लायर पे करते हैं, अगर वो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, अब उनको जो पहले वो कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते थे उनको 10% टैक्स पे करना पड़ता था, अब उनको क्या करना पड़ा, 8% पे करना पड़ा है. इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो और एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो और कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, क्योंकि अब उनको 2% का रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है. इससे वो क्या होंगे, एनकरेज होंगे और कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन सब्सिडी. अगर सब्सिडी क्या है, कोई भी सब्सिडी सिंपली मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है. जैसे आप कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको कोई भी इनपुट्स मिल रहा है, या आप कहीं भी उसको सोल्ड आउट करने जा रहे हो, तो उसमें क्या है, सब्सिडी मिल जाती है. जैसे हम लोग आप लोग सुने होंगे कि सिलेंडर पे सब्सिडी अभी मिल रही है. इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी प्रोडक्ट 4000 का, तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी उसका, तो ये प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो ये ऑलमोस्ट 3200 हो, तो ये 800 का इसको क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया. तो अगर सब्सिडी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब सब्सिडी और ज़्यादा मिलने लगेगी, तो इससे क्या होगा, लोगों को प्रॉफिट होगा. ठीक है, प्रॉफिट होगा. अब 400 पहले मिल रही थी, 4000, अब उसको कितनी मिल रही है, 4500 मिल रही है. तो अब लोग क्या हैं, और ज़्यादा मोटिवेट होंगे प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, जब सब्सिडी इंक्रीज़ करेगी तो सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, जब प्राइस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इंक्रीज़ होगी, सो द कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स. जब प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिक्रीज़ होगी, इन दैट कंडीशन ऑल्सो देयर इज़ इंक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स. जब नंबर ऑफ फर्म्स क्या हैं, जितनी नंबर ऑफ फर्म पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, अगर 10 एग्जिस्ट कर रही थी मार्केट में, अब वो क्या है, अब वो इंक्रीज़ होके आपका 10 से 15 हो गई, तो सप्लाई क्या हो जाएगी कमोडिटी की, और ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए क्या है, उस टाइम कर्व क्या है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो यू कैन सी हियर that we will take price on the y axis and the quantity on the x axis. So here we will take the demand, price is the same because increase and decrease in supply, we will study the relation between the factors affecting the supply as well as quantity supplied. So the price will be the constant and it will be the parallel to the x axis. So supply is this SS, and when the more and more supply, increase in supply, so the curve will shift to the rightward as S1. Okay, so in decrease in supply, it is the just opposite of the increase in supply. So when in increase in supply, we were
talk about that if the improvement in technology will happen, so that supply will also increases. But in the case of decrease in supply, it means deterioration in the technology, means जो जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं वो ऑब्सोलेट होती जा रही है, वो डिक्रीज़ करती जा रही है. तो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो पाएगा. इसलिए क्या है, सप्लाई डिक्रीज़ कर जाएगी. और क्या है कि जो राइज सप्लाई डिक्रीज़ कर पाएगी और फिर कर्व हमारा क्या है वो लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सॉरी, राइज इन प्राइस ऑफ द इनपुट्स. ठीक है, अगर प्राइस है जो इनपुट्स के प्राइस हैं, ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ कर गए, ठीक है, पहले इनपुट्स कम प्राइस में मिल रहा था, अब प्राइस क्या है बहुत ज़्यादा हो गया इनपुट्स का. तो कोई भी सेलर क्या है, जो कमोडिटी को प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है, वो क्या होगा, डीमोटिवेट होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली हो गया है. जैसे रॉ मटेरियल वो ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी ले रहा है, अब ये सब कॉस्टली हो जाएगा. तो वो क्या होगा, डिस्करेज होगा कि इनको यूज़ करने में. तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कम कर देगा. सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीजेज, सो द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. राइज इन द एक्साइज टैक्स रेट. जो टैक्स रेट पहले वो 10% पे कर रहा था, अब उसको उस पर 15% पे करना पड़ रहा है. अब 15% पे करना पड़ रहा है जो भी उसने प्रोड्यूस किया है. तो उससे क्या होगा, डिस्करेज होगा, क्योंकि अब उसका ज़्यादा फंड और कैपिटल वो टैक्स पे करने में चला जा रहा है. तो वो उससे डिस्करेज होगा कि नहीं, अब नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एज अ टैक्स पे कर दे रहे हैं. तो इसके वजह से भी क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज़ होगी एंड इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. डिक्रीज़ इन सब्सिडी. सब्सिडी पहले गवर्नमेंट क्या थी, 4,000 दे रही थी कोई भी प्रोडक्ट पे, अब क्या है वो 3,200 दे रही है. ठीक है, इस 3,200 से कोई भी सप्लायर क्या हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है, क्योंकि उसको पहले ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब उसको 800 का लॉस हो रहा है. इस कंडीशन पे वो क्या करेगा, सप्लाई उसकी वो डिक्रीज़ कर देगा, as well as the curve will shift to the leftward. Decrease in the price of the complementary goods. ओके, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी, सो द सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीजेज एंड द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स. इंक्रीज, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस क्या होगी, जो भी सब्सटीट्यूट है कार एंड पेट्रोल, सॉरी टी एंड कॉफ़ी, तो अगर उसकी कॉफ़ी की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई, तो क्या होगा कि डिक्रीज़ हो जाएगा सप्लाई ऑफ द दैट कमोडिटी, सो द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड. एंड डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स. अगर नंबर ऑफ फॉर्म पहले मार्केट में 15 एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो क्या है 10 हो गई, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि कम ही मार्केट हैं, मतलब कम ही फॉर्म्स हैं जो कमोडिटी प्रोड्यूस करी है. इससे क्या होगा कि कम हो जाएंगी डिफरेंट जो भी आपके फर्म्स हैं, तो उनके सप्लाई भी कमोडिटी की क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, सो दैट द सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीजेज एंड द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड. कर्व क्या होगा, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो हियर यू कैन सी, okay, here we will take the price on the y-axis and the quantity on the x-axis. So there is no change in the price of the commodity, because in increase in supply and the decrease in supply we will study the we are studying the relation between the factors affecting the supply and the quantity supplied. So price will be the constant, so it will be the parallel to the x-axis. It is the normal supply curve, and when there is decrease in supply curve, so it will shift to the leftward as S1 S1. So it is all the what are the different factors which affecting the demand curve or the shift in the demand curve, and what are the different factors which affect the shift in the supply curve. Okay, so these all are the reason only because of which the supply or the demand curve is shifting. Either it will shift to the rightward or it will shift to the leftward. It is totally depend upon the which kind of changes occurs. अगर वो changes favorable हो रहे हैं in the case of increasing, so the curve will shift to the rightward, and अगर जो भी changes unfavorable हो रहे हैं, in that condition the curve will shift to the leftward. Okay, so the next one is that is
effect of shift in the demand and supply on equilibrium price and the quantity. Okay, so what will happen when there is effect of shift in demand and supply, कि demand और supply curve दोनों ही shift होगा on the equilibrium price when the price is equilibrium and the equilibrium quantity. So we will discuss here the chain effect. Chain effect means कि we will discuss the changes occurs in the both one, that is demand and supply curve also. So when there is shift in the demand and supply curve, the equilibrium price also changes. Okay, as we already discussed that if the demand and supply curve here it is intersect to each other, so the price is OP. But when the demand and supply curve shift either rightward or the leftward, for example it is shifted to the rightward and it is shifted to the rightward, so the equilibrium prices also change as P1 and equilibrium quantity is also change as OQ1. Okay, so it is also saying here, ये यहाँ पे यही कह रहा है कि when there is shift in the demand and supply curve, जैसे ही demand और supply curve में कोई भी shift होगा, the equilibrium price also changes. जो equilibrium price है वो क्या होगा, change हो जाएगा. But this change in price is not sudden or immediate change. ये क्या होगा, ये जो चेंज होगा प्राइस में, ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली और इमीडिएटली चेंज हो रहा है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस पासेस थ्रू दी मैनी स्टेजेस. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है, व्हेन द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग इधर राइटवर्ड और द लेफ्टवर्ड, इट इज़ पासेस थ्रू दी मैनी स्टेजेस. वो बहुत सारे स्टेजेस से होके जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएटली वो चेंज हो गया. For example, when there is excess demand due to increase in demand or decrease in supply. When we talk about the excess demand, कि demand क्या होती है, excess होती है. In that condition, demand is more and the supply is less. Increase in supply and the increase in demand and the decrease in supply. Price begin to rise due to competition among the buyer. ठीक है, price क्या होती है, वो increase करती है. Let me, you can see here. It is the equilibrium and okay, so okay, this is E and this is demand curve, this is supply curve. Okay, it is excess demand condition, excess demand. Okay, yes, so when there is price begins to rise due to competition among the buyer. अभी क्या हो रहा है कि इस कंडीशन पे प्राइस क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, क्योंकि डिमांड किसी भी कमोडिटी की बहुत ज़्यादा हो गई है. डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्राइस बिगिन टू राइज. प्राइस भी क्या करना पड़ रहा है, उसको राइज़ करना पड़ रहा है. क्यों राइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी कमोडिटी की डिमांड हो रही है अमंग द बायर्स, since they are not able to get all what they want to at a given price. ठीक है, अभी क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि अभी हम क्या हैं, हम एज अ कंज्यूमर हम बहुत ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड करने लगे हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स. बट डिमांड इज़ एक्सेस एंड द सप्लाई इज़ लेस. सप्लाई क्या हो गई है, लेस हो गई है. तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि सप्लायर इतनी कमोडिटी की सप्लाई नहीं कर रहा है. ऐसे में क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाएगा. मतलब बायर्स क्या है, बायर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा एंड दे आर नॉट एबल टू गेट ऑल व्हाट दे वांट एट अ गिवन प्राइस. और वो सारे बायर इतने कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि वो सारे कमोडिटी को परचेज़ कर ले जो वो उस प्राइस पे परचेज़ कर रहे थे. सो इंक्रीज़ इन प्राइस इनिशिएट प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर. अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होगी, हमने पढ़ा है लॉ सप्लाई की, जब जैसे प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो सप्लायर को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. सो जैसे ही इंक्रीज़ इन प्राइस ये इनिशिएट करेगा प्रोड्यूसर को कि वो सप्लाई भी ज़्यादा करें, वो मोर एंड मोर सप्लाई करें, बट हायर प्राइस बिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन डिमांड. अब बट इसके साथ एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीज मोर एंड मोर, इट इज़ द बेनिफिशियल फॉर द सप्लायर बट इट इज़ नॉट
फेवरेबल कंडीशन फॉर दी बायर्स। ये बायर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी द डिक्रीजेस एंड कॉज फॉल इन देयर डिमांड। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि एक और अगर हम जब प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम अगर सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल, बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजेस सो द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंड व्हेन वी सी ऑन अदर हैंड we see that when the price of the commodity increases, price of any commodity is increases, so that it will give the pressure to the demand of the product, मतलब downward होता जाएगा, क्योंकि higher price में all the buyer are not capable to purchase the commodity, so it results the demand for the commodity is fall, कि अब जो डिमांड है कमोडिटी की वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, बिकॉज जो भी कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, बायर हैं, वो कमोडिटी को परचेज नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की हम क्या हो जाएगा कि अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे सेम डिमांड कर पे जो मूवमेंट होता है अपर से लोअर पे हम आ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई क्या हो गई है, सप्लाई इंक्रीजेस, सो दिस रिएक्शन ऑफ बायर एंड सेलर लीड्स टू रिडक्शन इन एक्सेस डिमांड। अब यही जो प्रॉब्लम है, अब यही जो कंडीशन है, इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस डिमांड में रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड एक्सेस हो गई है। अभी क्या हो गई, प्राइस बहुत कम हो गई थी तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। अब क्या हो गया है कि इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा कि अब इससे इस कंडीशन में सप्लायर को लॉस हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कंपटीशन के लिए सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा तो प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होगी सप्लायर क्या करेंगे, मोर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे। जब ये मोर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो इससे कोई भी बायर क्या होगा, डिस्करेज होगा, क्योंकि वो हायर प्राइस पे कमोडिटी को परचेज़ नहीं कर सकता है, फिर उनकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन थी वो क्या हो गई, फॉल इन डिमांड। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की वो कवर अप हो जाएगी एंड द प्राइस कंटिन्यूज टू राइज टिल एक्सेस डिमांड इज़ वाइप्ड आउट। अब यही प्राइस हम ये देख रहे थे, OP से OP1 हो गई थी और डिमांड हमारा इतना ज़्यादा हो गया था, प्राइस कम हो गई थी। अब यही क्या होगा कि प्राइस राइज करती रहेगी, शुरू होती रहेगी, कहाँ उसको पहुँचना है, P पे पहुँचना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, और डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल अगेन एट द सम न्यू प्राइस। अब जो भी मार्केट डिमांड है एंड मार्केट सप्लाई है, अब वो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे एट द सम न्यू प्राइस। ओके, सो इट इज़ द बेसिक सिंपली हाउ द चेन ऑफ इफेक्ट सिंपली मीन्स कि हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो जाती है। अभी इसका जस्ट कॉन्ट्रेरी होता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मीन्स कि सप्लाई इज़ मोर, ओके, सप्लाई देखिए, सॉरी, this is the diagram, it is the equilibrium condition, that is E, and here it is the P1. This is condition of excess supply, means हमारी डिमांड बस इतनी हो रही है और सप्लाई इतनी ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस क्या है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब एक्सेस सप्लाई होने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सेस सप्लाई क्यों हो रही है कि नंबर ऑफ़ फर्म्स उसमें क्या हो गई हैं, फर्म्स क्या हो गई हैं, मार्केट में ज़्यादा हो गई हैं। अब जब नंबर ऑफ़ फर्म्स मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो इस कंडीशन पे कोई भी मार्केट में क्या होगा कि प्राइस को फॉल किया जाएगा। अब वो प्राइस को हम ये कोशिश करेंगे कि वो P से P1 आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही प्राइस कम होगा तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ फर्म्स ऐसी होंगी जो मार्केट को एग्ज़िट कर देंगी, क्योंकि वो उस कंडीशन पे उनको लॉस होने लगेगा, सो दैट दे विल कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट वेयर दी डिमांड एंड सप्लाई इज़ इक्वल टू ईच अदर। और जैसे ही प्राइस कम होगा सो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जो डिमांड आपकी बस इतनी हो रही थी वो डिमांड आपकी इतने में चेंज हो जाएगी एंड देन वी गेट दी इक्विलिब्रियम कंडीशन।
तो सिंपली इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब प्राइस सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ फर्म्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, और नंबर ऑफ़ फर्म्स इंक्रीज़ होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है। तो इस कंडीशन पे क्या किया जाएगा कि प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होगी, सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज़, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स ऐसे होंगे जो मार्केट को एग्ज़िट कर देंगे। जैसे ही प्राइस कम होगी तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीजेज, एंड देन जो एक्सेस सप्लाई की कंडीशन है, ये एक्सेस सप्लाई कंडीशन वो वाइप्ड आउट हो जाएगी, और देन वी अगेन रीच आउट दिस पॉइंट वेयर द मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व, एंड वी गेट द equilibrium price, that is OP, and equilibrium quantity, that is OQ. So this is the chain effect. So it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.